Hare Krishna, good evening, welcome all of you for our Saturday evening Bhagavatam class. So we are doing the Bhishma Stuti. So first canto, 9th chapter is going on. So we have completed 22 verses. So we have to take from verse number 23. So just a fast recap. Bhishma Pitama is lying on the bed of arrows and Krishna is getting Yudhishthir, who is having a doubt that whether he is the root cause of all the sorrow and sadness caused by the war. कहीं वो युद्ध का कारण तो नहीं था एंड उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जो उनकी जान चली गई, जो मारे गए, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, एवरीवन। तो जो अर्जुन को युद्ध के पहले हुआ, युधिष्ठिर को युद्ध के बाद हुआ। बट पहले भगवान ने ऑलरेडी एक बार भगवद गीता बोल दिया था, तो भगवान बोले व्हाई शुड आई रिपीट। सो आई ब्रदर टेक हिम टू अ गुड डिवोटी एंड हु वाज द डिवोटी वाज वेटिंग फॉर हिम? Bhishma Pitama. Bhishma Pitama was waiting and he said, okay, let me take them to them, them to him. And then he took them to Bhishma Pitama. And then Bhishma Pitama first says, oh, how much anyaya and how much kashta you have taken to throughout your life, but actually you are not supposed to live. Na jivitam klishtamananam. The Vipra Dharma Achyuta Ashraya. Since you have taken the shelter of Vipra, that is Brahmanas, Dharma, that is righteousness, and what was that? The Vipra Dharma and Achyutaha, भगवान का आश्रय लिया था। तो ये तीन का आश्रय आपने लिया है, इसके वजह से आप बच गए। तो हमारे ऊपर भी जब विपत्ति आएगी, हमको ये तीन चीज छोड़ना नहीं है। विपत्ति तो आएगी, विपत्ति comes by the law of karma. So as per our karmas, whatever karmas I have done, I have to suffer. Whatever karmas you all have done, you have to suffer. Each one has his own set of sufferings. But many times we make as Adhyatmik Klesha as our suffering, which is actually not there. Adhyatmik Klesh means what? Can anyone explain to me Adhyatmik Klesh, the proper understanding of Adhyatmik Klesh? Whatever blockages we get while we are on the way. No, that's not Adhyatmik Klesh. Adi Devik Klesh, then that is also sometimes Adi Devik, कभी ट्रैफिक जाम रहता है, कभी बारिश ज़्यादा होता है। आदि भौतिक कॉज बाय अदर लिविंग एंटिटीज, कोई घर वाले बोलेंगे नहीं जाना है, मंदिर नहीं जाना है, आज आपको घर पे रहना है, या पिक्चर जाना है, या मार्केटिंग जाना है, शॉपिंग जाना है। तो आदि भौतिक, बट आदि आध्यात्मिक जो है वो सबसे वो दैट बिकॉज द वर्स्ट पार्ट इज आध्यात्मिक क्लेश डजंट डिपेंड ऑन अदर्स, इट डिपेंड्स ऑन यू ओनली. It basically depends on you. Yes, Chigar Prabhu, how can you elaborate on this? प्रभु जी जैसे एक एग्जांपल के सब ऐसा लगता है कि सब कुछ एकदम बराबर से सेटल हो जाएगा फिर हम लोग स्पिरिचुअलिटी करेंगे. Very nice. Something like that. Very good. Something more in depth than that. See, generally some problems exist. But some problems are created which do not exist. Let's say Nitish says by end of 2020, March 2024, I should have 2 showrooms in Santa Cruz. He sets up a target, and then he is behind that, day and night. He even keeps, Prabhuji, I'll come. Abhi time nahi, I'll come. I'm just giving a fictitious example. So he puts up some target which is not required, and even if it is required, let's say suppose he says no, I have been slogging for such a long time, मुझे आज वो बनना है, अगर कर्म में नहीं है, उल्टा भी खड़ा हो गया तो भी नहीं होने वाला. अगर आपका कर्म में नहीं है, आप उल्टे भी खड़े हो जाओगे तो भी नहीं होने वाला. So this is आध्यात्मिक. His senses, his passion, his desire is that I should have a showroom or whatever it is, my boutique or something, and that too I should have the high-end clients, this and that. Fine, to have desires is not wrong, but these desires should not become a stumbling block in his own life. You will stop coming to devotion, you will not eat properly, you will have always money, this and that running around. Where will he land up in the end? And in the end,
will that another 6 months or 1 year which he has put in the whole thing, will that time come back? Will that time come back? Will that much time you have lost in doing devotion service? So it is better that आध्यात्मिक क्लेश को हम कम करें. हम लोग अक्सर आध्यात्मिक क्लेश से ही, and that clash is created by our own selves. मुझे वो जॉब चाहिए, वो प्रमोशन चाहिए, वो आई वांट दिस, ये करना है, वो करना है, अचीवमेंट्स, whatever you call. Good, one should have achievements. It's not that one should be goalless. बस आज का दिन कट गया, कल का दिन कटे, वो गलत है. Nowhere Shastra is saying that that should be your thing. But please keep achievable targets. One should move with targets in life, but has to have achievable targets. Even in devotion you have to have a target. आज दिन में कम से कम हफ्ते में 1 श्लोक आप ऐड करूंगा, कम से कम हफ्ते में 2 बार मैं भागवतम के श्लोक पढ़ूंगा. So even targets are there in devotion also. मैं दिन में रोज में 16 माला करूंगा. So that's also a target, and that time to achieve that target sometimes it becomes difficult. अरे खत्म ही नहीं हो रहा है, माला खत्म ही नहीं हो रहा है, लेट हो रहा है, whatever it is, whatever the practical problems may be. But if those targets are not kept any priority, only you keep priority to your material targets, then that becomes the biggest stumbling block. This is all explained by Bhishma Pitama in Mahabharata when he is talking about the entire Vishnu Sahasranam. आगे आएगा, आज क्लास में भी आएगा वो the topic. So he will talk about what all things he has talked about. Dharma, Artha, Kama, Moksha, everything he will be talking about. So that is the reason why one has to understand that he is telling Yudhishthira Maharaj, Yudhishthira bhai, आप याद रखो, आप याद रखो कि भाई problems have come, will come, and the only reason how you can save yourself will be by taking the 3 Sharanagati or 3 shelters of 3 things. That is going to be Dharma, Vipra and Achyuta. तो ये 3 चीज का आश्रय कभी भी किसी भी कारण में नहीं मेरे को भगवान पे विश्वास नहीं है, मेरा भगवान ने मेरा कुछ नहीं किया, मेरा क्या किया भगवान ने. This is not acceptable at any point. Problems are going to be there. In this material world one will have problems. But the genuine problems से ज़्यादा है our own problem. People have उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा समझा, उसने मुझे ऐसा देखा. You have enough headache as it is. Don't pull in more. We like to pull in more headaches. And in the process of devotion also the catches are many. The process of devotion catches are many. So one has to be very careful in the process of executing devotion. So first he says that, then he tells, please identify this person who is God, who is moving around like a ordinary man. आप लोगों के समझ में नहीं आएगा. He himself is God. ये स्वयं भगवान है जो आप लोगों के बीच में ऐसे घूम रहा है. और when he is moving around like this in the common people, तभी याद रखना, he is the same person who is samo to all, equal to all devotees, but at the same time, what is so special about him? He is Bhakta Vatsala. He is equal to all, but he is Bhakta Vatsala. What does that Bhakta Vatsala means? He is very, very dear to the Bhaktas, and the Bhaktas are always dear to him. See, our whole life goes in achieving proper prosperity, but prosperity is only through karmas. I'll tell you one small story to understand this. It's a very important story. Once one Brahmana was there. He wanted to get his daughter married. उनको अपने बेटी का ब्याह करना. पता है, you're okay with English? राधिका माता जी? तो I'll be in Hindi also, but तो एक ब्राह्मण को अपनी बेटी का ब्याह करना था. तो उसके पास धन नहीं था. तो उसने सोचा अभी धन कहाँ से लाए, लोगों से क्या मांगू, जाके सीधा लक्ष्मी देव का उपासना करता हूँ. सो ही वेंट एंड डिड तपस्या फॉर लक्ष्मी देवी. अब ये गांव छोड़ के, बेटी को छोड़ के, सब छोड़ के गया जंगल में तपस्या करने के लिए.
तो ये गांव वाले सोचे कहाँ गया ब्राह्मण, है जिंदा मर गया, कोई जानवर खा गया, बेटी बेचारी कुंवारी है। गांव वाले लोग ने वो लड़की का शादी ब्याह करा दिया, अच्छी तरह से शादी करा दिया, लड़की ब्याह के अपनी ससुराल चली गई। मगर ये इसको पता नहीं, ये जंगल में बैठा है, तपस्या कर रहा है। एंड में लक्ष्मी देवी प्रकट हो गई। लक्ष्मी देवी सामने आई, बोला बोलो क्या वर चाहिए। तो बोला देखो मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा बेटी का ब्याह कराना है, मुझे इसके लिए थोड़ा धन की जरूरत है, आप थोड़ा धन दीजिए, आप धन की देवी हैं तो धन दीजिए। तो लक्ष्मी जी ने बोला देखो आपका बेटी का ब्याह हो गया, दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन, आपको पता नहीं होगा कि आप यहाँ पे हैं जंगल में, बेटी का ब्याह हो गया। अच्छा हो गया, ठीक है, देन थैंक यू वेरी मच। आपको ये जो तपस्या किया है उसका फल तो लेना ही पड़ेगा। सी दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मटेरियल तपस्या एंड स्पिरिचुअल तपस्या। मटेरियल तपस्या इज नो गारंटी दैट यू विल गेट फ्रूट्स। एक आदमी लेट से हीरो बनना है, हीरोइन बनने के लिए पापड़ बेल रहा है, रोज प्रोड्यूसर के चक्कर काट रहा है, बट ये गारंटी नहीं कि वो हीरो या हीरोइन बनेगी। Like you are slogging day in and day out, you may be successful, you may not be successful, there is no guarantee. There goes the law of karma works. But when you are doing tapasya, जब आप तपस्या कर रहे हो, the law of karma is kept aside because you are doing a new karma and which is as per the shastra. हाँ, मनमुखी नहीं होना चाहिए। आप बोलेंगे मैं पुराना बाबा का पूजा करूंगा या माता जी का पूजा करूंगा, मतलब जीवित माता जियों का पूजा करूंगा, तो वो फल नहीं लेने वाला। इट शुड बी एज पर द शास्त्र प्रमाण हो तो जरूर लेगा। तो फाइनली ही डिसाइड्स ऑन वन, जीरोज डाउन ऑन वन पॉइंट कि भाई मुझे आप कुछ फल नहीं चाहिए। लक्ष्मी देवी ने बोला इसका आपको फल लेना ही पड़ेगा। बोला ठीक है, क्या फल है इसका? फल ये है कि आपको 1 साल के लिए, 1 वर्ष के लिए राजा बन के जीना पड़ेगा। राजा फिर तो हो गया। हाउ इज थिंकिंग, अगर मैं राजा बनूंगा तो भोग में लिप्त हो जाऊंगा, तो फिर मेरी भक्ति रह जाएगी, ब्राह्मण का जो मेरा पूजा पाठ का जो है वो सब रह जाएगा। सो ही प्रेस, नहीं आप नहीं, कुछ नहीं हो सकता, आपको 1 साल के लिए राजा बनना ही पड़ेगा बोल के लक्ष्मी दी गायब। अब ये सोचा अब मैं राजा बनने से कैसे अपने आप को रोकूं, तो बेस्ट क्या है, आत्महत्या करूंगा तो भूत बन के घूमूंगा, मैं आत्महत्या नहीं करूंगा तो मैं क्या करूं, मतलब एक काम कर सकता हूं, राजा ने अगर मुझे मारा, अगर राजा द कैपिटल पनिशमेंट इज दैट, इफ देयर इज अ कैपिटल पनिशमेंट लाइक यू नो इफ समवन इज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय हैंगिंग एंड ऑल, वो भूत में नहीं, वो भूत नहीं जाएगा, योनि में नहीं जाएगा। इट इज एज पर द शास्त्र। ओके, I don't know about the democratic viewpoint, but as per the Raja rule is concerned, अगर राजा ने अगर दंडित किया आपको तो आपको उसके लिए प्रेत योनि में जाने की जरूरत नहीं। तो उसने सोचा मैं ऐसा कुछ करता हूँ राजा के पास जाके, राजा तो बनाएगा नहीं, वो तो जिंदा है, वो तो मुझे अभी राजा तो बनाएगा नहीं, मगर मैं ऐसा कुछ इंसल्टिंग काम करूंगा कि राजा ही मुझे। सीधा गया राजा के दरबार में, राजा बैठा था अपने सिंहासन में बैठा था, तो सीधा उसने उठा के अपना चप्पल जो था निकाला, जोर से फेंका, जस्ट थ्रू द स्लिपर राइट ऑन द हेड ऑफ द किंग। ही न्यू वेरी वेल द किंग, जस्ट इमेजिन समवन गोज एंड थ्रोज अ स्लिपर ऑन द प्राइम मिनिस्टर, हाउ इट वुड ही बी स्पैट? सो दैट टू किंग इन द दरबार, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, मिनिस्टर्स एवरीवन, he just lifted his slipper and threw, and tragically the king ducked, the king सर झुका लिया और वो चप्पल जाके उसके छतरी पे, ऑलरेडी वन स्नेक वाज स्टैंडिंग टू बाइट द किंग। एक सांप खड़ा था राजा को काटने के लिए, वो सीधा उस सांप पे जाके चप्पल लगा और चप्पल सांप गिर गया, मर गया। कितना परफेक्ट हिट था उसका। नेवर प्लान दैट yes it will be so nice, नहीं let it be open, हाँ, तो it was a perfect hit. So now everyone let क्या पकड़ो, but then they saw a dead snake lying
and immediately the astrologer came, said, राजा आपका तो सर्प काटने से आपका मृत्यु तय था. You are to die by snake bite, but this Brahmana's slipper has saved you. He said, he called the Brahmana, now you have to come and sit in this throne. He said, Brahmana, please come and sit in the throne. Brahmana said, no, you put me in Fasi, put me in the gallows. I am not supposed to live. मुझे तो मार देना चाहिए आपको, आपने मुझे दंड देना चाहिए. मैंने जानबूझ के आप ही मारा था, मिस हो गया वो बात है. नहीं, डू नो राजा के पीछे एक छतरी होती थी, तो वो छतरी पर सांप बैठा था, वो सांप. सो फाइनली एवरीवन ही प्रेज्ड. अच्छा ठीक है, आपने मेरा प्राण बचाया, तो आज से हम और आप दोनों साथ साथ रहेंगे. दैट्स द डील. ओके, वो राजा का बात काटना नहीं सकता है. सो ही स्टार्टेड स्टेइंग विद द किंग फॉर एवरीथिंग. लाइक नो, अगर हंटिंग करने के लिए गया, दरबार में बैठेगा तो राजा का एक सिंहासन, तो बगल में उसका ही वही लेवल का सिंहासन. यू नो, ही वाज लिविंग ए किंग्स लाइफ एट पार विद द किंग. ब्राह्मण वाज आल्सो एंजॉयिंग नाइसली. चलो अच्छा खाना मिल रहा है, 2 टाइम नहीं 4 टाइम खाना मिल रहा है, एंड यू नो लोग सलाम कर रहे हैं एंड ऑल दैट व्हिच एवरीवन लाइक्स टू हैव, नेम, फेम, पावर, पोस्ट. दिस वेंट ऑन. Finally, almost at the end of the year, this fellow king and this Brahman, they both went, and they used to stay in the same camp. Okay, the king had given him everything parallel. जो राजा भोगता था सभी चीज इसको. अगर एक शरबत आया तो भी 2 गिलास शरबत आएगा राजा के लिए और ब्राह्मण के लिए. तो एंड में ऐसा हुआ कि दोनों लोग हंटिंग के लिए गए. दोनों हंटिंग करने के लिए दोनों एक ही कैंप में, एक ही तंबू में बैठे थे. और उस दिन रात को ब्राह्मण को नींद नहीं आ रहा था. उसको झाड़ी में कुछ छुच आवाज आ रही. घूम के देखा तो एक सांप देखा. तो ये टाइम चप्पल नहीं, उसने क्या किया, तलवार निकाला. अभी वो राजा की तरह रहे तो तलवार तो रह गए. इस राजा ने मुझे इतना ट्रीट किया, इतना प्रेम से रखा है, ये सांप आ रहा है, इसको मैं मार दूंगा. और जोर से वो सांप को मारने के लिए उसने तलवार उठा के ऐसे हाथ उठाया, तब राजा का आंख खुल गया. राजा ने देखा, ओ तू मौका देख के मुझे मार के तुझे राज्य को हड़पना चाहता है तू. नहीं बाबा, मैं तलवार लेके, वो सांप कहाँ है, सांप दिखाओ. सांप गायब हो. सांप एज यूजुअल हिंदी पिक्चर का पुलिस की तरह गायब हो गया. तो इस स्टैंडिंग विद द स्वॉर्ड एंड ही इज लाइक, तू मुझे मारने के लिए कोशिश किया, जी तो करता है तुझे अभी तुरंत मृत्युदंड दे दूं, मगर सिंस यू सेव्ड मी वंस आई विल ऑल्सो स्पेयर यू वंस. तूने मेरी जिंदगी एक बार बख्शी, इसके लिए मैं भी तेरा जीवन एक बार बख्श देता हूं. जा, get out my camp. And there everything was taken away, all his gold and all was taken away, and he was just pushed out as a Brahman. And when he came out, when he was just wandering the forest, tab Lakshmi ji. Yes, my dear Brahmana, how are you? मैंने आपको बोला था, जो कर्म आपने किया है उसका फल तो आपको मिलेगा ही. आप कुछ भी कर लो, उससे बचने की कोशिश कर लो. दैट मीन्स इवन फ्रॉम अ गुड कर्मा यू कांट एस्केप. वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम बिकमिंग अ किंग इज लाइक द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड. जब उस चीज से ब्राह्मण बच नहीं पाया तो हम लोग दुख दर्द से हम लोग कैसे बच सकते हैं, पीड़ा से कैसे बच सकते हैं. सो इफ एनीवन पुट्स एफर्ट्स बियॉन्ड human capacities, he is considered as a moodha, fool. So the law of karma is always working, and that is going to be the final decisive factor in everyone's life. In everyone's life, that will be the most decisive factor. So one has to understand that he was trying to tell that the one can only save himself from the reactions of
karmic reactions only and only by surrendering to three things. And then he told him how great Lord is and the greatness of the Lord, his capacities, his how inconceivable the Lord is. But we are fooled because Lord is moving around amongst ourselves as a common man. And yes, despite his being equal and kind to everyone, he has graciously come before us while I am ending my life, and for I am his unflinching servitor. He says, finally भगवान यहाँ पे आए हैं कि उन्होंने मुझ पे कृपा किया है कि मेरा जीवन का अंतकाल है, तभी आए हैं. And now he speaks verse number 23. Bhaktyāvesh mano yasmin vāchayan mama कृत्यम त्रजाय कलेवरम योगी मुच्यते कर्म भी काम कर्म भी. This is very important. The personality of Godhead who appears in the minds of devotees by attentive devotion and meditation and by chanting of the holy name releases the devotee from the bondage of fruitive activities at the time of quitting the material body. Now let me explain this verse first and then we will have some questions. Now first understanding, what did you understand from the reading the translation? क्या आपको समझ में? Controversial statement है कि for the unflinching devotee who is meditating and chanting devoted to God, at the end of his life उसके सब कर्म. That is what I said, and that is the question answer. हाँ. तो first let us understand, then we will तभी उसका मंथन कर पाएंगे ना. तो first let us understand. My question is, what did you understand on the face of it? On the face of the thing, 1.9.23. Yes, ज्ञानी श्वेता बताएंगे. हाँ, राजेश ने क्या है? शत्रुपा जानवी देवी दासी, जानवा देवी दासी. यस माता जी, बोलिए. डिवोशन करके हमारा जो लाइफ में फर्स्ट लाइन पहला पढ़ो. फर्स्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. द पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड हू अपीयर्स इन द माइंड ऑफ द डिवोटीज. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? माइंड. प्रॉब्लम क्या है? कंटेमिनेशन कहाँ पे है? माइंड. आप कितना भी रगड़ के नहा लो, थोड़ा साबुन लगा के, बॉडी वॉश लगा के, सब लगा के नहा लो, गंदा क्या है? बॉडी इज ऑलवेज नेवर क्लीन, बट इट कैन नेवर बी क्लीन. कितना भी आप क्लीन कर लो, कितना भी सुबह रगड़ के नहा लो, 1 घंटे में शरीर स्मेल करने लगेगा. बट व्हाट इज द प्रॉब्लम? द माइंड. So the personality of Godhead who appears in the mind of the devotee, he appears only in the mind when one chants, meditates and does attentive devotional service. ये devotional service का ये पार्ट 2 चीज बोला गया है, meditation and chanting. But what is actual devotion? What does Prahlad Maharaj say? What is the Navadha Bhakti? The 9 limbs or the 9 ways of doing devotion. किसको याद है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम. ये 9 स्टेप्स गुजरना पड़ेगा. यू कांट बाईपास एनी वन ऑफ द स्टेप. इवन इफ यू वांट टू, यू कांट बाईपास. श्रवणम, सुनना ही पड़ेगा. कीर्तनम, चैंट करना ही पड़ेगा, भगवान का नाम लेना ही पड़ेगा. ये अगर आप नहीं करोगे तो आगे का स्टेप में नहीं जाओ. श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, फिर ही तो विष्णु का स्मरण आएगा. जब सुना ही नहीं उसके बारे में, आपको अमेरिका के बारे में याद आएगा अगर आपने जिंदगी में कभी अमेरिका के बारे में सुना ही ना हो तो. ऐसे कई सारे देश हैं जो आपने कभी सुना नहीं, उनके बारे में याद आता है, उनके बारे में स्मरण होता है. कहां से होगा जब आपने सुना ही नहीं? तो when you have not heard about it, how can you know? But if I tell you, in South India there is a community who eat such and such a food, जब सुनोगे तब कभी कभी
किसी के साथ बात करते हो याद तो आएगा, हाँ मैंने वहां सुना था कि फलाने लोग, कुछ लोग हैं जो ऐसा भी खाना खाते हैं। जैसा हम लोग सुनते हैं, कितने लोगों ने जाके देखा एक्चुअल चाइना में चाइनीज लोगों को जिंदा जानवरों को खाते हुए। None of us have seen it, but still we are all heard it, and by hearing it itself we can picturize eating cockroaches and earthworms and this and that. So what does this mean? First is Shravanam. You can't bypass Shravanam. Shravanam के बाद कीर्तनम। श्रवणम सुनने के बाद अगर आप भगवान का नाम नहीं ले रहे हो तो आपका आगे कुछ भी नहीं बढ़ा। आएंगे लोग 10-20 साल से आते हैं, मन भर प्रसाद भी खा लेंगे, मन भर के नहीं, मन भर के प्रसाद खा लेंगे सालों से, बट नो चेंज, नो आउटपुट। व्हाई नो आउटपुट? देयर इज नो आउटपुट बिकॉज दैट श्रवणम हैज नॉट टर्न्ड इनटू कीर्तन। देन ये दोनों होने के बाद विष्णु स्मरण, फिर थोड़ा भगवान का सेवा करना पड़ेगा घर में। इसके लिए पहले दिन हम ये नहीं बोलते कि आप भगवान का सेवा करो और भगवान को भोग लगाओ, बट व्हाट इज विष्णु स्मरण? पाद सेवनम, पाद सेवनम, अर्चनम, बंधनम, दास्यम, ये 4 चीज आता है डीटी वशु। डीटी सेवा करते हो तो ये सब आ जाता है। भगवान को उठाओ, भगवान को नहलाओ, भगवान को खाना अच्छा खाना खिलाओ, भगवान का श्रृंगार करो, ऑल दिस कम्स एंड देन उसके बाद दोस्ती हो जाती है भगवान के साथ, और दोस्ती होने के बाद भगवान के साथ यू स्टार्ट कन्वर्सिंग। तो डांट भी सकते हो आप भगवान को, यू नो दैट यू कैन शाउट एट गॉड आल्सो, बट provided you pass through the other stages. You don't pass the earlier stages and then people also shout, general people, मुझे ये प्रॉब्लम देना था, पड़ोसी को कितना दिया, मुझे कितना कम दिया, हाँ, people shout. That is not the way you interact with God. You can interact with God only and only when you pass through the earlier stages. And archana, mandanam, dasyam, sakyam, atma nivedana. Then you are totally surrendered. गोविंद स्वामी का स्टोरी मैंने बताया था आप लोगों को, याद है? कितने लोगों को याद है? ब्रज के गोविंद स्वामी जो श्रीनाथ जी जब वहां थे उनके साथ खेलते थे, जानबूझ के वो मंदिर का पीछे का खिड़की खुला रखते थे वो साईं, और तो 1% सिट देयर। तो दैट विंडो यूज्ड टू बी केप्ट ओपन। और क्यों खिड़की खुला क्यों रहता था? खिड़की क्यों खुला रहता था मालूम है? भगवान कूद के पार खेलने में। एंड वहां पे एक कृष्ण सखा बोल के था, ही वाज फ्रॉम ए लो कम्युनिटी, निम्न जात, उसके साथ जाके भगवान खेल रहे, वो आके बुलाता था। जैसे आई डोंट नो, आजकल का जमाना चला गया, पहले हम लोग के छोटे थे ना, तो खेलते वक्त शाम को आ जाते थे दोस्त, हे चल चल खेलने को। आजकल माँ बाप बोलते हैं जाता है बच्चे। टुडे चिल्ड्रन डोंट गो आउट, बट इन अर्लियर डेज इट यूज्ड टू बी all this is not for devotion. All this fight is not for devotion. He said the class was mentioned over here. He has to search it out. That's his headache. There is some video. Yeah, today we had so many special invitees, you know, unwanted invitees. ये प्रभु जी रेगुलर वाले हैं। अच्छा, वो चक्रवर्ती प्रभु जी हाँ उनको उधर कहाँ था? चक्रवाल पे, नहीं सॉरी शंका पद्मा। तो वो से हाँ, तो कृष्ण जब बोला था चल लेट्स गो, एंड दोपहर को मंदिर बंद, कृष्ण गए बाहर खिड़की से कूद के खेलने को, क्या गिल्ली डंडा ऑल दैट, दिस साक्यम, ही इज प्लेइंग। तो धमाल चल रहा था,
ये गोविंदास जी ने देखे। गोविंद स्वामी वॉज अ ब्राह्मण, सनातन ब्राह्मण। तो उसने देखा, ओ कृष्णा तेरा पूरा you're contaminated yourself, you will have to go and take bath. Krishna said, I am not going to take bath, I was just playing. I don't come daily, I came only once. No, you're coming daily with him, playing daily, I know that. तुम cheat कर रहा है, झूठ बोल रहा है। Krishna used to really go, but he used to play with Govind Swami also. Govind Swami बोला चलो नहाने को, नहीं मैं नहीं नहाऊंगा। And I'll almost be knowing Govardhan में very close to Govind Kund is that प्लेस जहाँ से श्रीनाथ जी प्रकट हुए और ऊपर ही मंदिर है। ओके, रूट आजकल पीछे के साइड से, ये साइड भी रूट था पहले। तो जिसने जाके झगड़ा कृष्ण के साथ झगड़ा, ठीक है मैं ब्राह्मण हूँ, मंत्र से आपको शुद्ध कर देता हूँ, चल। गोविंद कुंड के साइड पे खड़ा रहे, हाँ अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, केशवाय नमः, हाँ बोलो, हाँ जल पियो, और एंड में केशवाय नमः बोला ना, जोर से धक्का मारा भगवान को, सीधा पानी में भगवान फेल डाउन इन द वाटर। एंड इतने में वहाँ पे बंटी बजी, मंदिर खुलने का टाइम हो गया, तो ऊपर टेम्पररी मंदिर अभी तो नहीं, अभी मंदिर आज भी है, टेम्पल इज स्टिल देयर। तो गोवर्धन के ऊपर तो मंदिर बेल बजा, तो भगवान यहाँ वहाँ से सीधा वहाँ प्रकट हो गए। गोसाई जी ने कपाट खोला, देखा भगवान थर कांप रहे हैं, पानी टपक रहा है, थर कांप रहा है, एंड इज स्टैंडिंग। तो गोसाई जी ने बोला व्हाट हैपेंड टू यू, हु हैज ड्रेंच्ड यू? ओ तुम्हारा गोविंद स्वामी ने मेरे को धक्का मार दिया पानी में। तो मैं गोविंद स्वामी वहाँ आया, गोविंद स्वामी जैसे आया उसको पूछा, पहले गोसाई जी बहुत नाराज थे ना, नाराज रहता है, यू कम टू नो, यू डोंट लुक एट हिम, यू डोंट टॉक टू हिम, तो नाराज मालूम पड़ा। तो बाद में जब गोविंद साहब ने पूछा, जय महाराज क्या हो गया, क्यों नाराज हो? तूने इसको धक्का मारा। अच्छा, इसने कंप्लेंट किया, भगवान ने कंप्लेंट किया, कृष्ण ने कंप्लेंट किया। अब मैं बताऊं उसने क्या किया, पूरा नाक कटवा रहा था आपका, हाँ उधर वो कृष्णा दास के साथ खेल रहा था, मैंने उसको पकड़ के लाया, उसको बोला नहाने के लिए, नहाने को तैयार नहीं था, ये आपका मंदिर का मान मर्यादा बचाने के लिए उसको मैंने गोविंद कुंड में धक्का मारा। तो ये उसको कंप्लेंट दे रहे, वो इसको कंप्लेंट दे रहे, एंड में दोनों एक दूसरे को कंप्लेंट देके बोला भाई आप लोगों का बीच का बात है, मैं बीच में नहीं पड़ूंगा। तो व्हेन बोथ कैन टॉक विद ईच अदर, मतलब हाउ क्लोज दे मस्ट बी विद गॉड। ये ऐसा तो एक दिन ऐसे ही, मतलब दीज वर द टाइप ऑफ डिवोटीज हु यूज्ड टू इंटरेक्ट विद गॉड। Once Govind Swami was standing somewhere in the near on the way to Govardhan, and उसके गांव के सब ब्रज के लोग हैं, तो उसके गांव के लोग थोड़े दूर से वो लोग आ रहे थे। तो उन्होंने पूछा आप गोविंद स्वामी को जानते हैं? वो गोविंद स्वामी वो तो मर गया। खुद गोविंद स्वामी बोल रहे हैं वो तो मर गया। कब मरा? तो उसने बराबर कौन सा दिन बोला? जिस दिन उसकी दीक्षा हुई। जिस दिन उसकी दीक्षा हुई बोला वो तो मर गया, उसी दिन मर गया। बोला अच्छा, अरे हमको बोला ही नहीं, हमारा गांव का एक अच्छा ब्राह्मण लड़का था, छोटा सा लड़का था, he came at a very young age, he was very small, now he had become big, so they couldn't identify him। तो चाहेंगे हम छोड़ेंगे नहीं, वो गांव वाले लोग ना जोश में आ जाते हैं, हम जाके गोसाई जी को पूछेंगे कि बेचारा हमारा लड़का ये हो गया और आपने हमको इन्फॉर्म भी नहीं किया, लेटर भी नहीं दिया। तो गए उसके साथ, गोसाई जी खड़े थे, बोला आओ, अरे क्या आपने हमको बताया नहीं, हमारा गोविंद स्वामी गुजर गया। गोविंद स्वामी, तो ही नोज हिम ओनली एज गोविंद दास। तो गोविंद स्वामी कौन सा गोविंद स्वामी? वही जो फलाना गांव से आया था, वो तो है, जिंदा है। नहीं वो मर गया, तुमने हमको बताया नहीं। इतने में गोविंद स्वामी खुद आए, वहां पे आके भगवान को प्रणाम किया, तो उसको पूछा वो ये है ना ये? तो गांव वाले ने बोला देखो यही है तुम्हारा गोविंद स्वामी, यही है, पूछो इससे बात करो। तो बोला अरे आपने बोला गोविंद स्वामी मर गए। हाँ, आपने क्या पूछा? गोविंद स्वामी तो जिस दिन दीक्षा हो गया उस दिन ही मर गए। आज जो बच्चा है वो गोविंद दास। इसके लिए what you should possess is what once one devotee got initiated by Srila Prabhupada.
So the devotee went and told Prabhupada, you have given all the other people nice names. You have not given me a nice name. So Prabhupada said, what's your name? जो भी था उसका नाम बोला. Don't see that. See that Das. See the last word, Das. That is more important. Because that is the most beautiful part of your life. Das means, that is what is पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सब उस दास में आ गया. सब वो दास में सब आ गया. करते नहीं हुआ थे लोग, कई लोग नहीं करते हैं, but that's a bad part, but you are supposed to do that. So coming back again, there is one more Leela of Govind Swami. I'll tell you one more. Govind Swami एक बार नीचे घूम रहे थे, भगवान आए नीचे उतर गए. तो गोविंद घोड़ा बनना, मुझे घोड़ा बनना, घोड़े पे सवार करना. अच्छा ठीक है, घोड़ा बनना, तो मैं घोड़ा बनता हूँ. तो घोड़ा बन गया. तो घोड़ा कैसे बनना है? तो घोड़ा बनना क्या, तुझे बैठना है, मैं तेरे कंधे पे पैर रख के बैठ जाऊंगा. ठीक. तो घूमने लगा थोड़ा देर, फिर इतने में बोला, ओ भगवान उतर जाओ, मेरे को लघु शंका लगी, आई वांट टू गो टू टॉयलेट, यूरिनेट. हे तो घोड़ा बना है ना. हाँ, घोड़ा कभी मालिक को बोलता है क्या? हाँ? उतरो, मेरे को लघु शंका के लिए जाना है. हाँ? तो घोड़े की तरह कर. This God telling Govind Swami, see the interaction, see the, please understand the भाव, क्या भाव है. तो मैंने बोला तू घोड़े की तरह कर. तो इतना बोला, ये भी कन्विंस हो गए. Because as per Shastra, see that's the difference between Shastra and Western culture. Western culture, only animals urinate and pass stool standing. All humans, they have to sit down and urinate. This is what the Shastric way. You see, even in villages we go today, that's how humans behave. I mean, that's how Brahmanas and other caste people behave. तो पशु खड़े खड़े किया, मतलब पशु इवन खाना भी खड़े खड़े नहीं खाना चाहिए. और आजकल हम लोग क्या प्लेट लेके खड़े रहते हैं ना शादी ब्याह में, लाओ 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 लाओ, like a beggar you have to stand, and then as soon as you get, आजकल तो क्या टिश्यू पेपर पे they give starters on tissue paper. And then we see we are advanced. So कहने का मेरा भाव कि there are certain things only मनुष्य शरीर में कर सकता है, और कुछ चीजें वो है सिर्फ प्राणी शरीर में कर सकता है. तो अच्छा, ये जो कार्य कर रहा था किसी को भगवान दिखाने, पर बहुत सारे लोगों ने गोविंद स्वामी को खड़े खड़े पेशाब करते हुए देख लिया. They all went and complained to गोसाई जी. गोसाई जी, आपका ब्राह्मण कीर्तन या सरोज कीर्तन गाता है और वो ऐसे खड़े खड़े सब पशु जैसे कर रहा है, कुछ समझाओ उसको. तो ये आया, थोड़ी देर में गोविंद स्वामी आया ऊपर, गोविंदास आया, उसको पूछा. गोसाई ने बोला क्या नहा दो क्या, जा. बोला क्या हो गया? नहीं तू क्या पशु की तरह सब कर रहा है, सुना मैं. I have got the news that you are doing this. He said, देखो, 1 minute. This Krishna only told me. He was sitting on my shoulder and he told me, तू घोड़ा बन. मैं घोड़ा बना. And then he told me, तू पशु घोड़ा है तो घोड़े के जैसे कर. तो मैंने किया. तो immediately कृष्ण को पूछा, आपने बोला था? मैं ऐसा कुछ बोला नहीं. मैं बोलूंगा सब कुछ करना चाहिए क्या, थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए. दोनों में झगड़ा. तो गोसाई जी वापस बोले, ठीक है, आप लोगों का दोस्ती के बीच में मैं कभी पंच नहीं बनूंगा, आप लोग दोनों झगड़ा. सो द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज हाउ क्लोज पीपल बिकम विद डिवोशन. दैट इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस श्लोका. दिस श्लोका सेज लॉर्ड अपीयर्स इन द माइंड एंड क्लेंजेस हिज misgivings. What are the misgivings? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर. ये 6 चीजों से हम लोग इतना ग्रस्त हैं, इतने रसगुल्ले की तरह डूबे हैं कि बस इसी में हमारा पूरा जीवन जा रहा है. So Lord says, I will come for the attentive devotee who is doing meditation and chanting my holy name, and then once Lord appears in your mind, you get cleansed.
And then from that very point, the devotee becomes free from bondages of all fruitative. मतलब सभी कर्मिक reactions, good and bad, दोनों reaction से वो बच जाए. Now coming back to the question asked by Jigar Prabhu, which is a very valid question, and I was to debate on that topic. So, why does Lord doesn't come immediately when you start chanting? Why? That's what your question was, right? What was the question? नहीं, only मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम लोग मरते हैं फिर भी अपने थोड़े तो कर्म रहते हैं, तो क्यों कर्म रहेंगे? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो. Sarva, what is Lord Krishna telling in the Bhagavad Gita? Very clearly saying, Sarva papebhyo mokshishami ma sucha. He is guaranteeing this. This is a charam shloka for Sri Sampradaya people. एक बार शरण में आ जाओ, तुम्हारा पूरा मैं पाप में हर लूंगा. सर्व पापेभ्यो. For him, even punya is also पाप, क्योंकि वो भी बंधनकारी. इसके लिए तो जब परशुराम जी जब आए विष्णु रामचंद्र जी को मिलने के लिए आफ्टर द मैरिज, तुमने कैसा धनुष तोड़ा, दैट एपिसोड इज देयर ना. परशुराम जी आते हैं, जब धनुष तोड़ देते हैं, जनक महाराज का धनुष रामचंद्र जी छोड़ के शादी भी कर लिया. तब जब परशुराम जी आते हैं उनके सामने, उसका ही धनुष लेके उसमें बाण चला देते हैं, चढ़ा देते हैं. बोलते आप किधर चढ़ाओ, बोलो. एक बार चढ़ गया, it has to be fired. Once a gun is loaded, it has to be fired. It's like that. Now, once the bow is string has been pulled, it will be fired. So now you tell me, where do I fire? That is why there he didn't put the arrow when he came to see that bow during the Swayamvar. It was not Swayamvar, it was just a thing. That time what did he do? He just pulled the bow down so strong to string it that it itself broke. So there was no question of any putting the arrow on the bow. But here he didn't break it. He put the bow and the arrow on the bow and he said, now tell me, where should I fire? Should I remove the speed? Because he had fantastic speed. याद है ना आप लोगों को स्टोरी याद है? He had fantastic speed because he had given the earth in donation after doing all the killing the Kshatriyas 21 times. He had done Ashwamedha Yagya, and in the Ashwamedha Yagya he gave the entire earth he had donated. So once you donate, it is not yours. So you cannot stay there. So every day he used to go to Mandarachala. And from there he used to come. That's why God had given him, he had the special quality of fantastic speed. एकदम मन के स्पीड में मंदराचल पर्वत किधर है, धरती किधर है, आना जाना super fast flight था उसका. So he said, should I remove the speed or should I remove your heavenly planets? आपके पुण्य, जो heavenly planets means जो आपने पुण्य किए जिससे आपको एक स्वर्ग मिला है, वो स्वर्ग निकाल दूंगा. तो उन्होंने बोला ये स्पीड तो चाहिए मुझे, बिकॉज मैं धरती का वासी नहीं हूँ, मैंने धरती को दान दे दिया. remove my heavenly planets. So वन में से अरे रामचंद्र जी ने उसके heavenly planets निकाल दिए, या उसका पुण्य निकाल दिए, उस पर कृपा किया, उन पे कृपा किया. क्यों कृपा किया? बंधन से मुक्त हो गए. नहीं तो स्वर्ग जाने के चक्कर में उसको जन्म तो लेना पड़ता था, या वो पुण्य भोगने के चक्कर में उसको वापस जन्म लेना पड़ता था. उनको उस भगवान ने फ्री कर. So it was actually indirectly he was doing a obligation on Parshuram ji. Now, is your question answer clear? Any doubts? Please repeat your question. Now, once we will understand this answer, now I'll ask a question, very important question. Okay, I thought it was the same question. When you chant, when you do devotional service, that very moment, why Lord doesn't appear? Or why doesn't Lord clear our karmic reactions? जितना जल्दी अगर आपको कोई चीज मिल जाएगी तो you won't value. Okay, so perspective answer, okay, but it's not right, but okay. और पहले जमाने में माँ बाप जब तक वो बच्चा था 40 बार मांगता नहीं था तो देते नहीं थे. क्यों? ताकि उसको उस चीज की कदर हो, कीमत. बट दैट्स नॉट द रियल रीजन. यहाँ पे
भगवान हमको अभी कदर नहीं दिलाना चाहते, बिकॉज नाउ यू नो दिस इज द अल्टीमेट थिंग. The problem in childhood, one is after one demand, the next demand comes. After you ask for a mobile, then you ask for a nice jacket, shirt, goggles, whatever it is. So your demand keeps on recurring. But यहाँ पे there is no question of that sort. The one who knows how important devotion is, that person will automatically go and do devotion. He doesn't want, मतलब तरसाने वाली बात ही नहीं. Something better. Immediately क्यों भगवान नहीं आते? At the end, तब तक हाँ. He wants the love for him to deepen. That is why they want you to leave everything and surrender only to him. That is why. But a person who is already meditating on him, attentive devotion and chanting his holy name, और कितना निचोड़ेगा? बोलिए. Probably upon being human being, we also strive for perfection, right? Prabhu, there is nothing in devotion, there is nothing called perfection. There is nothing called perfection. Why there is nothing called perfection? Because it keeps on changing. 20 years before, if let's say some dress someone was wearing, or let's say 50 years before, everyone city of Mumbai were wearing dhoti kurta and moving around, right? Coat, the typical coat एक हुआ करता था, वो पहन के जाते थे. आज कोई पहनता है क्या? So that was perfection that time. This time perfection is फटे हुए कपड़े पहन के घूमना is perfection. So that is something which keep changing with time. Yes, माता जी, गूगल कुछ बता रहा है? नहीं बता. कुछ चीज गूगल नहीं बताते. हाँ. Because you have taken, you have to, because karma is there, then हाँ. you have to finish. Yes. What is the problem if I don't finish? Bhagavan can reveal it immediately. तुरंत भगवान को there is no, भगवान का तो बंधन है ही नहीं. वो आपका कर्म एक सेकेंड में निकाल सकते हैं. फिर पर अर्जित तो बाबू जी आप ही ने किया है ना, तो आपको ही भोगना है. हाँ. तो I mean whatever karmas which we are going through, it is our own karma. तो that is the same karmas is मोक्षयिष्यामि मा शुचः. हम तो हम सर्व पापे भी हो. अभी जो शरीर मिला है उसके साथ कुछ ही कर्म भोग रहे हैं. हमारे संचित कर्म हैं, अकाउंट में बहुत हैं, पुण्यस एंड बैड कर्मस और बहुत हैं. अब थोड़ा पुण्य भोग रहे हैं, थोड़ा कर्म बुरे कर्म भोग रहे हैं. अभी सिर्फ एक टांग में दुख रहा है, फिर 2 टांग दुखेगा. अगर पूरा कर्म दे दिया तो उठ नहीं पाओगे. पूरे कर्म दे दिया ना, उठ नहीं पाओगे. उठना क्या, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा. मतलब बोलते ना वो द मैग्नीट्यूड ऑफ karmic reactions is so thick, so heavy that it cannot be. And in the meantime, mind you, while living this life, you are creating a new set of karmas. So how do we understand this? Why is Lord delaying? Only at the time of death He will come and He will cleanse our cleanses of all our karmic reactions. Then only we can go back to Godhead. Right? हाँ. अगर हमारे प्रारब्ध कर्म खत्म कर देंगे तो the body will end. Yes, that is one of the main point. अगर हमारे जब तक जब एक शरीर देते हैं उसके साथ एक कर्म के साथ एक शरीर मिलता है. You know, many times we see people dying untimely or very early in their life. What does this mean? Every time it is not an accidental death. Sometimes it's some बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी आके व्यक्ति बहुत जल्दी, मतलब रिलेटिवली 20 years, 30 years, 40 years में गुजर जाता है. क्यों? उस शरीर के साथ जो कर्म करना था जैसे ही पूरा हो जाता है उसको उस व्यक्ति को शरीर छोड़ना पड़ा. एंजॉइंग और सफरिंग वॉट एवर इट इज. कोई व्यक्ति को बीमारी आती है, बहुत छोटे उम्र में बीमारी आती है, छोटे उम्र में गुजर जाता है. You see, basically, I'm not saying individual, but on a big segment, if you see mentally retarded people, children, they die relatively at a very young age. By the age of 30,
it is over. The lifespan is generally they don't live long. Very few live for a very long span. Why? It is a karmic reaction for some bad karma which they have done in the earlier life. But that life has to get over. मतलब बोलते ना कैसे जेल में कैसा एक 24 घंटा इज इक्वल टू 2 days. तो 12 आवर्स का एक मतलब दैट इज अ रिग्रेस लाइफ. सो 12 घंटे का एक दिन हो गया उधर, पर हमारा 24 घंटे का दिन. तो जो 12 घंटे का दिन वो क्यों है? अगर उसको 24 साल है तो 12 साल में निकलेगा. 25 साल मिला है तो 12 साल में 12.5 साल में बाहर निकलेगा. व्हाट डज दिस मीन? दैट पनिशमेंट में आपका स्पैन कम कर दे. द स्पैन ऑफ योर लाइफ स्पैन ऑफ सफरिंग. अगर वो 60 साल रहेगा तो 60 साल तक वो मेंटली रिटार्डेड पर्सन, बिकॉज दैट इज मिक्स्ड कर्मा रिएक्शंस. इट इज नॉट ओनली सफरिंग फॉर द पर्सन, इट इज फॉर द पीपल सराउंडिंग दैट पर्सन. चाहे वो एल्डर्स हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, वो लोग को भी फॉर देम ऑल्सो इट इज अ बिग साल. प्लीज अंडरस्टैंड. सो दीज आर ऑल कार्मिक रिएक्शंस. सो यस, व्हाट शी सेड इज वेरी मच ट्रू. द मिनट our karmas in one body, that's why कई बार कोमा में पड़ा रहता है पर व्यक्ति जाता नहीं. क्यों? उसका कर्मा अभी भी वो शरीर में पूरा नहीं हुआ. The minute the karma in that body is over, you have to leave that body. And अगर भगवान पहले दिन आके आपका ओके कर्मिक रिएक्शंस क्लियर, भक्ति कैसे करोगे? भक्ति कैसे करोगे? एंड भक्ति अगर करना भी है तो जब तक जस्ट इमेजिन अब घर से निकले सैटरडे इवनिंग, कोई सिग्नल नहीं मिला, कोई ट्रैफिक नहीं मिला. विद इन 10 minutes और 20 minutes यू रीच टेम्पल. मजा आएगा? मजा आएगा. यू विल फील सम, या यू आर हिटिंग अ फुटबॉल and the goal post is there and you are kicking the ball and there is nobody to stop it. There is no goalie, nothing. So what is the use of kicking that ball? कुछ मजा आए? That's why in video games and all, why the levels goes on increasing. That the thrill comes in, right? The level is increasing now. Now more enemies will be stopping you and then you nudge your way, you drive your car. No, whatever the game is. What does that mean? हमारा thrill और बढ़ता है. और वो जब लेवल 3 में आ गए, ओह आई हैव वन लेवल 3, आई हैव वन लेवल 4. व्हाट डज दैट मीन? मैंने और मुसीबतों को पार करते हुए मैं जीत गया. सिमिलरली लॉर्ड विल ऑल्सो पुट दीज आवर जो प्रारब्ध कर्मा जो है, इस जन्म के जो प्रारब्ध कर्मा है, वो हमारे सामने एज ए क्वेश्चन मार्क, एज अ प्रॉब्लम आएंगे. दे विल बी क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स टू अस. That will come in the form of आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, और ये 4 तो है ही है, बीमारी और बुढ़ापा तो है ही है. So they will come and create problems, but in spite of that, Lord will see असली भगत है या ऐसे शोशा वाला भगत है, हाँ शाइनिंग भगत है या असली भगत है. तो those problems, in that problems is the person living and going. कई लोग बोलते हैं ना, हमको प्रॉब्लम आ गया है, मेरा धंधे में नुकसान हो गया, मेरा बेटे के साथ ऐसा हो गया, बेटी के साथ ऐसा हो गया, मैं भगवान से मैं पूजा नहीं करूंगा, भगवान को देखूंगा नहीं. तो फिर उसके लिए काय के लिए आएगा भगवान एट द टाइम ऑफ डेथ? अंतकाल में क्यों आएगा? बरस वो व्यक्ति जो हर काल में भगवान को याद करेगा, वो अंतकाल में भगवान जरूर उसको आएंगे. एंड दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से. ही विल फ्री हिम फ्रॉम द बॉन्डेज. So unless until one is not freed from his karmic reactions, the present karmic reactions, जो प्रारब्ध कर्म जो दिया गया है इस शरीर के लिए, वो कर्म कंप्लीट करना है. भक्ति करते हुए हमको नए कर्म और कर्म बंधन जोड़ने नहीं. हमको नए कर्म अगर जोड़ते गए फिर वापस भगवान बोले कितना इरेज करूं? 1 गुना 2 गुना हो तो ठीक है, 1000 गुना भी ठीक है, ये तो लाखों में तो गुना कर रहे हैं, तो मैं कितने गुना माफ करूं? So a bhakt generally, that is why the lifestyle of a bhakta is he doesn't eat non-veg, he doesn't drink, he doesn't do illicit sex, he doesn't gamble. Why doesn't he do all this? Because he doesn't want to create a new set of karmic reactions. और रही बात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, this decreases with your chanting. जैसे जैसे आप भगवान का नाम लेते जाते हो
automatically your काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य 100% goes down. And once that is going down, you are able to do your devotion service in spite of all the problems. Just imagine, अमरीश महाराज खड़े हैं, दुर्वासा मुनि आए, कृत्य खड़ा किया, कृत्य को सुदर्शन चक्र ने मार दिया और दुर्वासा मुनि भाग रहे हैं. एंड अमरीश महाराज से इसे देखा मेरा डिवोशन कितना पावरफुल है, तुरंत सुदर्शन चक्र आ गया ना, नेक्स्ट टाइम मेरे से पंगा मत लेना, ऐसा डायलॉग मारा. That was a test for Amrish Maharaj also. That was not just a test for Durvasa Muni, it was a test for Amrish Maharaj also. Is he getting puffed up with that? And he was humbly waiting for 1 year. जब पूरा भाग के घूम घाम के आए तब तक he is waiting. So don't think God will not test you only in bad times. God will test you in good times also. And those tests में अगर पास नहीं हुए तो प्रॉब्लम. भगवान बोले अच्छा एक पे गया, एक से लटक गया नहीं. सो कभी कभी सिंपल क्वेश्चंस रहेगा, उसमें भी यू कैन मेक अ मिस्टेक इन दैट आंसर. सिंपल एंड समटाइम कॉम्प्लिकेटेड सम उसको आप करेक्टली लिखे, बट सिंपल सम में गए तो भी आप फेल हो सकते हो. सो यू कैन फेल एट एनी पॉइंट. सो रिमेंबर लॉर्ड विल फर्स्ट यू हैव टू एग्जॉस्ट योर प्रारब्ध कर्मा. And while exhausting, all the problems or the bad karmas what you have done will be put in front of you, which will try to oppose you in doing your devotional service and will be testing you. And रही बात आपकी कर्मा जब पूरा हो गए तब भगवान बोलते हैं ठीक है अब तुझे मैं पूरा मन से साफ कर देता हूँ. So because what this gross body is, you have to leave at the time of death. You can't carry it. भगवान इस शरीर को आप तो शरीर के साथ नहीं जा सकते हो. और सटल बॉडी गोस, और उसमें क्या क्या है, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, एंड साथ में सोल. सो इंटेलिजेंस में प्रॉब्लम नहीं है, ईगो में प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम किसमें है, माइंड में. दैट इज व्हाई लॉर्ड विल अपीयर इन द माइंड एंड cleanse your mind so that you are now free for a journey, because that mind now you have to use for the service of the Lord. When you go to the supreme realm, when you go to Vaikuntha, वहां जाके भगवान का सेवा करने के लिए भी नहीं तो वहां खड़ा रहेगा, I don't have a mind. What is the use? You to serve the Lord also you need mind intelligence. So mind intelligence cannot be taken away at any time. It will be there at all times, whether you are in this material world or in the spiritual world. Otherwise you will be just standing in front of Vishnu blinking without knowing anything. So who are you? By the way, who are you? उससे भी better refined definition, 1/10,000 of the tip of the hair. अगर कोई बोलता है मालूम है कौन हूँ, 1/10,000 of the tip of the hair. If someone says ना मालूम है मैं कौन हूं, तो यू शुड से हाँ 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर. वो कंफ्यूज हो जाएगा. ओके, दिस आई लाइक टू क्लोज टुडेस क्लास. एनीबॉडी हैज गॉट एनी डाउट्स, क्वेश्चंस, कैन आस्क.